And let's see how beautifully questions are created and how a small correction of problems can ignite concepts in you, right? So this is one of the very rare questions that usually we do not find in most of the sources. And the whole intention behind these questions is to ignite the basic concept and to revise the chapter with quality contents and problems. So let's just start with the first problem. S is the set of x comma y belongs to R2 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. So it's set of all x, y such that this relation holds the area bounded by points in S. Now it's very beautiful questions, and a similar problem was already asked in J Advanced, not with this intricate concepts. Now the point is not just to solve this problem, but if you are able to solve this, clearly आपका जो concepts है ITF का वो बहुत ही strong है, नहीं तो आप ये solve ही नहीं कर पाओगे फर्स्ट प्रॉब्लम ही. तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो आप यू नो सिंस साइन इनवर्स एक्स belongs to minus pi over 2 2 pi over 2. This is the principal range and x input will range from minus 1 to 1. तो यहाँ पे one thing is worth noting is sine of sin inverse x. If you recapitulate, it's always x for all x in the domain, which is minus 1 to plus 1. But if I'll do sine inverse of sin x, this is not always x for all x belonging to real. This will be x if and only if x is in the window of minus pi over 2 to pi over 2. So in general, if x lies outside this window, so we already know the graph of this function will look like something like this. So we have minus pi over 2, pi over 2, this guy is pi, this is 3 pi over 2, right, and it is 2 pi. So I can clearly see is sine inverse sine 2x, sine inverse sine x is also predicted with an interval of 2 pi, which is worth noticing because if I replace x with x plus 2 pi, तो ये तो सेम आउटपुट देने वाला है आपका, क्योंकि sin x plus 2 pi सेम हो जाएगा. So just I need to draw the graph between 0 to 2 pi और इसको रेप्लिकेट कर देंगे. तो अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर मान लो हम साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 का वैल्यू अगर मैं पूछ दूँ, ठीक है, सो साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू पूछूँ तो ये फिर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 5 कहाँ पे आएगा, इट्स बिटवीन पाई एंड 2 पाई कहीं पे. 3 पाई बाई 2 इज लगभग 1.5 इंटू पाई. ओके, सो सपोज 5 इज हेयर. So now how I'll get to know whether 5 is more than 3 pi by 2. Suppose it's more, then 10 by 3 is more than pi. Pi is 3.14 and 10 by 3 is 3.33. So that's correct. So 5 will be more than 3 pi by 2. अब यहाँ पे what will be this height or depth you can tell. So that since this point is 2 pi, so this gapping is along the x-axis is 2 pi minus 5. So this depth will be 5 minus 2 pi. It's negative of that gapping. तो ग्राफिकली आप ये चीज़ बेसिक आपको जानकारी है. अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1. So if I'll take sin inverse x as angle, let's say A, and sin inverse y as B. Now clearly A is from minus pi by 2 to pi by 2 and B is also from that window. Okay, so I can write A plus B equals sin inverse of, since x is sin A and y is sin B. Right, so if I'll keep sin inverse x as A, I can take sin on both sides. So sin A will be x. तो यहाँ से जो मेरे बोलेंगे sin A into mod cos B plus cos A into mod sin B, right? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तो वो ओपन करेगा ना अकॉर्डिंग टू cos पॉजिटिव है या नेगेटिव. अब देखो सिंस एंगल इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई बाई टू, cos will open always open as positive, so it will always be sin A cos B. लेकिन sin B जो ओपन करेगा that will have two cases, whether B is from 0 to pi by 2 first quadrant or is in fourth quadrant. So this can open with 0 to pi by 2 में cos A sin B, right, और फिर माइनस पाई बाई टू 0 में ये उल्टा ओपन हो जाएगा, इट विल बी sin A cos B माइनस cos A sin B. अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है विच विल इनकॉर्पोरेट ऑल द केसेस. अब यहाँ से अगर तुम ओपन करोगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा sin A प्लस B.
लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे भी है, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, हाउ इट विल ओपन, दैट डिपेंड्स ऑन ए प्लस बी. इफ ए प्लस बी इन द विंडो ऑफ -π/2 to π/2 इट विल डायरेक्टली ओपन एज ए प्लस बी. बट अगर ये विंडो में, तो फिर आप देखो इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा. तो इस लाइन का इक्वेशन से क्लियरली यू कैन सी -x इज द स्लोप ऑफ दिस, एट x = π शुड आई सर्टनली π - x. ठीक है, अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो x इज द स्लोप, बट एट 2π शुड आई x - 2π. ओके, अब a is going from -π to π/2 and b is dancing from 0 to π/2 in this case. तो a plus b will dance from -π/2 to π. अब -π/2 से π में again it will open as sin inverse sin a plus b will open as two different box because it will open as just a plus b sin inverse sin theta or it will open as π - x. तो फिर यहाँ से भी दो केस आएगा, सिमिलरली यहाँ से भी केस आएगा. तो आप पूरे केस मेकिंग खुद से कीजिए और मुझे कमेंट सेशन में आंसर बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है. वी हैव 4 ऑप्शन A B C D. और उसका ऑप्शन जो है वो B नहीं आने वाला है, वो ऑप्शन C आएगा. इनफैक्ट द सॉल्यूशंस दैट विल गेट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, वी विल गेट दिस एंटायर सर्कल here in this region and this full square, any point will satisfy. Similarly you will get full square over here and this part of the circle. Okay, and since it's a unit circle तो यहाँ से एरिया बनने वाला है π/4 and that you check in the different 4 region 1 2 3 4 and 4 restriction as I've shown, and this guy will be square of length 1 1. So overall answer cross check and you'll get π/2 + 2. ठीक है, तो अब देख रहे हो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए मतलब आप ITF क्या बोलना चाह रहा है वो पूरा कॉन्सेप्ट ग्राफ सब कुछ क्लियर हो गया. ओके, सो इट वाज डिमांडिंग मैथ. मोर ओवर ये लोकस प्रॉब्लम को भी कवर कर लिया, एरिया बाउंडेड भी कवर कर लिया. एंड अननेसेसरी व्हाट आई हैव ट्राइड इज आई हैव नॉट मिक्स्ड, यू नो, लाइक एक प्रॉब्लम में फाइंड x और x को फिर मैं लिमिट से कनेक्ट कर दूँ, y को क्वाड्रेटिक कर दूँ. दिस इज यूजुअल कॉम्पिटिशन, यू नो, लाइक कोचिंग ट्रिक. एंड JEE एडवांस स्ट्रिक्टली हेट इट एंड सो आई. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबली अब ये मॉडल आप देखे भी होंगे क्योंकि इसका थर्ड क्वेश्चन ज़बरदस्त है, वो डिफ़िकल्ट है, लिटरली ये डिफ़िकल्ट है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिक नंबर थ्योरी पे. बिकॉज JEE एडवांस हैज आस्क्ड ऑलरेडी सम क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिक्वायर्स फंडामेंटल नंबर थ्योरी इवन AP GP ऑल्सो. तो मैं इस क्वेश्चन में वो बेसिक आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर के वर्ल्ड में. उससे पहले सेकेंड क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि अगर सपोज इफ आई टेक दिस एज थीटा तो कॉस इनवर्स तो कुछ एंगल देने वाला है, लेट्स दैट थीटा. अब बेस इज y, हाइपोटेनस हंसी खुशी 1 + y² हो गया. तो ये जो बनने वाला है ये तो 1 आ गया. तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट tan इनवर्स 1/y. अब मैं ब्लाइंडली इसलिए लिख पा रहा हूँ tan इनवर्स 1/y क्योंकि मेरा xy नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स 1/y इज 3/√10. तो अब बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. ओके, tan इनवर्स x + tan inverse 1/y is sin inverse 3/√10. Again sin inverse is perpendicular by hypotenuse, so this quantity is going to be 1, so it will be tan inverse 3. Now what I'll do is I can directly use tan on both sides, लेकिन when I am taking tan on both sides make sure you have to take the feedback क्योंकि extraneous solution आने का चांस है. क्यों आने का चांस है? क्योंकि tan inverse tan 3 से 3 आया या tan ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स 3 से 3 आया, ये मुझे पता ही नहीं क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो tan थीटा. ओके, सो दैट कैन ऑल्सो गिव द आंसर ऑफ 3. इट मीन्स आई डोंट नो द ओरिजिनल क्वेश्चन फॉर विच द नेक्स्ट स्टेप केम. तो नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम से भी आ सकते थे, तो इसीलिए आपको एक्सटेनियस सॉल्यूशन चेक करना ही होगा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. और यू कैन यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स x + tan इनवर्स y. वहाँ पे दो केस आएगा इफ xy इज पॉजिटिव. एक तो डायरेक्ट tan इनवर्स x - y 1 + xy और एक पाई प्लस tan इनवर्स x - y 1 माइनस ऑफ प्लस xy, जो तुम फार्मूला यूज़ करो उस हिसाब से. तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे टैनिंग ऑन बोथ साइड कर दिया था. tan ऑफ tan इनवर्स x में कोई इश्यू नहीं है. tan ऑफ tan इनवर्स y by 1 - ab और यहाँ से अपने पास 3 आ गया. तो ये बन के बहुत ही शानदार इस टाइप का सॉल्यूशंस मुझे दिखा. अब इसको इफ आई इवैल्यूएट तो आप यहीं पे मैं कर रहा हूँ x + y = 3y - 3x. तो अगर y को मैं उस साइड खींच के ले गया तो x - 3 टाइम्स y
और ये प्लस 3x आ गया, ठीक है। अब इसको डिमांड चाहिए 3x वांट्स एक्चुअली, आई वांट 3 टाइम्स x माइनस 3, क्योंकि कुछ कॉमन वॉमन हो जाए, तो इसके लिए -9 डेवलप करेगा, -9 + 1 हो जाएगा, तो 8 उस साइड चले जाएगा, ठीक। तो फाइनली मेरा इक्वेशन जो बन गया है x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू, ये आप चेक कर सकते हो। अब देखो, अब 8 का फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि 8 तो 8 1 1 8 4 2 या 2 4 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब चेक कर देते हैं, x माइनस 3 is 2, तो एक x का सॉल्यूशन 5 आया, y का 1 आ जाएगा। एक यहाँ से आया है 11 और 2 आ जाएगा। अब 1 8 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो नेगेटिव सॉल्यूशन देगा। 4 और 2 पॉसिबल है, x आपका 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 के लिए y को -1 होगा, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम अपने पास 5 1 1 2 आया। अब 5 1 1 2 को क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि आई नो tan इनवर्स 5 विल बी सम पॉजिटिव एंगल, tan इनवर्स 1 भी है, वो भी पॉजिटिव एंगल है, और tan इनवर्स 3 पॉजिटिव एंगल है। और ये सही है, क्योंकि tan इनवर्स का फंक्शन का कुछ ऐसा नेचर होने वाला है, इस टाइप का। तो ये सब π/4 से छोटा होने वाला है, क्योंकि tan इनवर्स 3 π/4 से ज़्यादा होगा, tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 10 π/4 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5,1 इज वैलिड सॉल्यूशन, 1,2 इज ऑल्सो पासिंग द कंपैटिबिलिटी टेस्ट, हेंस द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। आई वांट यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 बाय योर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, खुद से ट्राई करो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस आएगा। लेट्स सी मोर प्रॉब्लम। तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैं और यहाँ पे रख रहा हूँ, अनटिल आई रिलीज फुल बुक। अभी तो मैं पूरा सॉल्यूशंस आपको नहीं दूंगा, बट देखो ये 5 क्वेश्चंस आपको काफ़ी शानदार क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, दिस आई क्रिएटेड लॉन्ग बैक, जो कि काफ़ी सारे कोचिंग्स में भी अवेलेबल है। तो ये डिनोट SN विथ XY बिलोंगिंग टू R2, थोड़ा मैं इसको चेंज किया हूँ टू गेट अ न्यू फील। साइन इनवर्स x² + 4 + y² / 9 कॉस इनवर्स कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वल टू π/9। लेट TSN डिनोट्स number of elements in set Sn for a given value of n belonging to n, then which is true। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पे तो आपको 2 वेरिएबल है, तो व्हाट इज सेट Sn, पहले तो डिकोड करो क्वेश्चन को। तो ये सेट Sn जो है वो ऑर्डर्ड पेयर x, y है, सच दैट ये एक्सप्रेशन जो है वो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब T ऑफ S1 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S1, बिकॉज n कीप्स ऑन चेंजिंग। चलो मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, सपोज TS4, अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसका क्या मतलब है, इंस्टेड ऑफ n आई विल कीप 4 एवरीवेयर। तो देखो ऐसे फील करते हैं क्वेश्चन को। नाउ आई वांट साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस π/4। अगेन S3 सेकेंड ऑप्शन करने के लिए आई विल पुट दिस S3 एंड आई विल गो एंड चेक द सेकेंड ऑप्शन। फिर इसको 2 करके चेक करना होगा, फिर 1 करके चेक करना होगा, ठीक है। तो मोस्ट इजीएस्ट इज 1, सो मे बी आई विल स्टार्ट विथ 1। तो 1 मतलब पाई करके, ठीक है। So now I want what is S1, all those XY ordered pair such that sin inverse this plus this becomes pi। अपन चेक करते हैं, sin inverse ये पॉजिटिव क्वांटिटी विल डेफिनेटली लाई फ्रॉम 0 to π/2, ये तो गारंटी है फॉर एनी एक्स एंड वाई। बट कॉस इनवर्स ये तो अब वो डिपेंड करता है, अब पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड दैट टू -2 है। तो अब ये कहाँ से कहाँ चलेगा, उसके लिए तो एक रेस्ट्रिक्शन देना होगा। सो बिफोर वी गो फर्दर, यू नो, लाइक पहले तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन चेक करना होगा। इट मीन्स द नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज आई हैव टू फर्स्ट मेक श्योर लाइक दिस बिलोंग्स टू -1 to 1। Now clearly it can be negative, so that boils down to this belongs to 0 to 1, and simultaneously this entire expression belongs to -1 to 1, ठीक है। अब द मोमेंट विल फोर्स दीज 2 रेस्ट्रिक्शंस, अब आप देख सकते हो, जैसे 1 रेस्ट्रिक्शन लेट मी टेल यू, x² + 4 y² / 9 दैट बिलोंग्स टू 0 to 1। तो अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन क्रिएटेड है, क्योंकि ये एक इलिप्टिकल रीजन को डिनोट करेगा। Because if I'll take this inequality, I'll get a single point. If I'll take that, I'll get 4 means 2 and 3. तो एक vertical ellipse, and all the point inside this ellipse will satisfy our constraint. It means as long as I am taking any point in this region, देख रहे हो, any point in this region or on the boundary, it's raining. You see the points are raining. It will be justifying the domain, right? अब सेकेंड को जस्टिफाई कैसे करेंगे डोमेन को, तो यहाँ से आप देख सकते हो x/2 √2
प्लस वाई बाई 3√2 जो है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये 2 + 1 3 से लेके 1 तक। तो अब ये दोनों लाइन, सपोज ये कुछ लाइन है क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो इस लाइन को अगर मैं रफली प्लॉट करूँ सो इट विल हैव नेगेटिव स्लोप, ठीक है। सो इट विल डेफिनेटली बी अ पैरेलल ट्रैक काइंड ऑफ दिस, लाइक अब वो कहाँ होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, द ब्यूटी बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन विद इन दीज टू पैरेलल लाइन्स एंड दिस सर्कल। अब ऐसा हो सकता है, नॉट सर्कल, इलिप्स, ऐसा हो सकता है ये इलिप्स इसको इंटरसेक्ट कर दे, या फिर ये पूरा इंटरसेक्ट कर दे, या फिर इलिप्स कंप्लीटली मिसिंग दिस, या फिर इलिप्स इज टेंजेंशियल टू दिस। सो 4 सिचुएशंस हो सकता है, ठीक है। अब दैट सिचुएशन यू एनालाइज, जैसे ही एनालाइज करोगे बहुत ही, सपोज इफ वी गेट दिस सिचुएशन लाइक the line is like this. So now I know for all these points xy, because any point xy which satisfy this line is like this. Hence domain of function is only this point which is common to both ellipse and line. Okay, so we have infinitely many points in the domain. तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, you can also use the weakness of the option. Intentionally I have given the weak option because if there are infinitely many points here, तो हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वेदर इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो आपको चेक करना होगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए हो सकता है तो ये साइन इनवर्स का ये वैल्यू अलग हो गया, ये वैल्यू अलग हो गया, राइट, बिकॉज दिस विल गिव डिफरेंट वैल्यू, दिस विल गिव डिफरेंट वैल्यू। सो क्लियरली आई जो है वो किस पॉइंट के लिए आएगा वी कांट टेल, ठीक है। तो वहाँ से इट विल बी डिफिकल्ट। तो नाउ यू पुट इन द कमेंट सेक्शन विच इज द सिचुएशन हियर, वेदर एन इलिप्स इज इंटायरली inside this parallel track, or clearly it will not be inside, or it is this situation, or it is completely outside this parallel track. If it is completely outside, then none of my option is correct, क्योंकि then there will be no solution. तब तो no matter what you will give, कभी solutions आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि there is no point xy which is satisfying both of them. So there is, the question fundamentally becomes wrong. Now in maths there is no question which can be wrong. इसका मतलब I could have made one more a smart option maybe by putting 0, like that I have not kept because it will become too much and it's not gross justification for just 4 marks, because there will be other questions which might be more difficult. Either this situation will happen or this situation, और एक और situation बन सकता है जो कि आप कमेंट में बताइएगा या फिर खुद से सॉल्व कर लेना, जो कि टेंजेंशियल बन जाएगा। हाँ, अगर टेंजेंशियल बन जाएगा इसका मतलब देयर इज यूनिक पॉइंट एक्स वाई, लेट्स से एक्स नॉट वाई नॉट, for which this quantity LHS is defined. Now if it is defined for unique point x naught y naught, it means under that condition these two value is same, okay, because x naught y naught whatever value I am getting for this I must get for this, तब तो that will be satisfied only for pi by 2। इसका मतलब ये equation अगर the picture becomes tangential picture, then the only way in which this expression can be satisfied or this equation can be satisfied is when n has to be 2. It means for any other n, let's say for empty set, कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन को इवैल्यूएट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ 2 पे पॉसिबिलिटी है, तो S3 पे आएगा ही नहीं, S1 पे आएगा नहीं, और हेंस इसका आंसर 1 हो जाएगा अगर ये पिक्चर डेवलप किया तो। अब आपको चेक कर रहा होगा कौन पिक्चर डेवलप किया, सो आई विल नॉट रिवील द आंसर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट की द आंसर की for you as of now. Next question is usual telescopic series. So I think being a JEE advanced candidate ये आपसे बन जाना चाहिए। साइन इनवर्स है तो इसको क्या करोगे, तो एक इन मैनी सिंगेज बुक एंड अदर बुक आई हैव सीन, लाइक वो साइन इनवर्स को दे विल ट्राई टू राइट एज यू नो लाइक a√1 माइनस b² माइनस b√1 माइनस a², इस टाइप के वो कर देते हैं, क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए, फिर यहाँ से साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। But again, like it's not legal fully until unless you are taking care of the principal domain and range restriction. Anyway, अब यहाँ पे यूजुअली टेलीस्कोपिक में प्रिंसिपल डोमेन रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर वर्किंग इन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि r इज टू गोइंग फ्रॉम 1 to 100, ये नेचुरल्स है मोस्टली इन ऑल JEE को। बट आई रिकमेंड आप क्या करो, क्वेश्चन को tan इनवर्स में ऑलवेज कन्वर्ट कर लो, मज़ेदार सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स, ठीक है, 1/3 बनने वाला है, फिर 1/7 बनने वाला है, एंड दैट यू कैन इजीली डू बिकॉज 1 + 1 × 2 एंड सेकेंड विल बी 1 + 2 × 3, थर्ड विल बी 1 × 3 + 3 × 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वहाँ से आपको सीरीज आसानी से दिख जाएगा। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम्स आई विल शो यू द ग्लिम्स क्वेश्चंस जो कि एडवांस लेवल पे पक्का आ सकता है।
बिकॉज यूजुअली दे विल नॉट ओनली गिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट समटाइम्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे देगा डराने के लिए, जस्ट टू क्रिएट फियर, फिर आप रेंज निकाल सकते हैं. आंसर इज डी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक. Question number 9 as well is telescopic series directly tan inverse, but here I have given m6 minus 3m5 plus 3m4 minus mq plus 1. अब question number 9 is available in some of the books also, I am not sure, क्योंकि this I am not created entirely. लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखो यहाँ पे हिंट जो है वो मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट हिंट कम्स विद दिस नंबर्स 3 3 1 माइनस. यहाँ पे कुछ छुपा हुआ टेक्निक, because it cannot be extremely lengthy. You see, if in any JEE advanced problem, if you are getting answer or solutions in more than 7 to 8 lines, if basically more than 10 lines, then definitely you are wrong. There is not a single question of JEE advanced last 35 years, except 1% question, जिसमें solutions 5-6 लाइन में ना आए. तो अगर आपका concepts clear है तो आ जाएगा. अब देखो question number 10 is one of my favorite creation, और ये भी फिर basics पे questions डाला हुआ है. तो व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आंसर की क्लियरली 9th में यू डोंट गो विथ आंसर की, क्रिएट योर ओन आंसर की. इंटेंशनली मे बी आई हैव केप्ट रॉन्ग. यूजुअली आई टेस्ट दिस इन माई कोर्सेज एंड क्लास by showing them answer key sometimes, and so that they somehow try to get the answer rather than putting their own blank. So I want toppers kids to challenge me and tell me my answer key is wrong. So that is intentional. ठीक है. अब यहाँ पे देखो एस पी इज एक्स वाई, अगेन सेट नोटेशन में दिया हुआ है, यूजुअल JEE एडवांस वर्डिंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये फिर फाइंड करना है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सबसेट क्या है. अब यहाँ पे अगेन लाइक यू कैन पुट 2 and 1 and then start doing. फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 2x plus cos inverse xy is sin inverse y, and now you blindly take sine on both sides, sin a, okay, or you can take sin inverse 2x minus sin inverse y is cos inverse xy. अब आप टेक साइनिंग ऑन बोथ साइड साइन ले लो, एंड मेक श्योर लाइक यू हैव टू टेक द फीडबैक एट द लास्ट, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन. यहाँ पे शायद वो फीडबैक का काम नहीं हो क्योंकि आप पॉजिटिव में हो, लेकिन फिर भी आपको डोमेन रेस्ट्रिक्शन चेंज होना होगा, एंड यू हैव टू चेक विच ऑफ द फ्लोइंग होल्स. ठीक है. तो अगर आपका सॉल्यूशंस आ गया, कुछ कीज आ गया, एंड इफ यू एंजॉयड दीज प्रॉब्लम्स and those who felt like all these problems were new to you, even if you are into any coaching, definitely 90% problems will be new to you. आते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. You are not forced to join my course, and WhatsApp link is there. जिनको माना है ज्वाइन कीजिए, नहीं माना है तो enjoy wherever you are reading, आप सही से पढ़ाई कीजिए. हाँ, those who will join the course they will have extra advantage. हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स कोर्स में सॉल्व करेंगे. तो आप देख सकते हो ऐसा 10 प्रॉब्लम में ही आपका ITF का पूरा ऑलमोस्ट फंडा क्लियर हो जाएगा. उसके बाद I'll give you one assignment and we'll do previous year question paper. That is sufficient to get a strong command in subject. Okay. Thank you.